We will start with chemical bonding. What is the concept of chemical bonding? Various types of bonding we will discuss. Then also I will discuss here the various types of theories for covalent bond formation, which is important part, valence bond theory, hybridization theory, then molecular orbital theory and all. So first of all, my question is for everyone. Why do atoms combine? Why do they combine to form molecules? Anyone can answer. Let me say, you can raise your hand. Yes, Aryan, So to gain stability. to gain stability. Good. So basically, you know the noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. Except for helium, which has 1s2 configuration, all other have ns2 np6. Or I can say they have 8 electrons in their valence shell. If you write for neon, neon is 28, argon is 288, krypton is 28188. So basically they all contain 8 electrons in their valence shell, and that is considered to be stable. For other elements, like let's say you have hydrogen, it has 1 electron. Valence electron I will represent with a dot. You have sodium atom. How many valence electrons sodium have? 1. 1 electron. So I will represent it as 1. If you have calcium, how many valence electron it has? 2. Sir, Atomic 8. number is 20. So you have 2, 8, 8, 2. So how many valence electron does it have? 2. 2 valence electrons. So I will represent as 2 dots here. Oxygen. Can you tell me how many valence electron oxygen have, Tushagra? Sir, oxygen 6. Yes, 6 electrons it has. So I will represent 6 dots here. Chlorine, how many valence electron it has? 7. 7, because you have configuration is 287. This is 2, 4, 6 and 1, 7. Right? Yes, sir. Now, whenever two atoms they are combining to form molecule or some ionic compound, there are two ways. Suppose sodium atom I have 1 electron it has, and it's a metal. So metal will have tendency to gain or lose electron. Lose. Sir, lose. Lose electron. While chlorine have tendency to Gain electron. gain electron. So sodium loses this electron to chlorine. And if it loses 1 electron means it will have sodium plus. अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैटायन बनेगा या नहीं बनेगा सर? Sir, बने. Yes, sir, बनेगा. बनेगा. और अगर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहां पर चार्ज क्या होगा? Minus.
-1, and positive and negative ion, this will have configuration now 2-8. Chlorine after gain of 1 electron will also have 2-8-8. Noble gas configuration of argon. So this type of bond where there is a transfer of electron from a metal atom to non-metal atom. Ionic bond involves transfer of electron from a metal atom to a non-metal atom. And what type of attraction will be there? Positive, negative ion will attract each other. Yes, sir. What type of attraction you call it? Electrostatic? Yes, sir. The electrostatic force, you well know कि positive positive है या negative negative है, they will Repel. repel each other, but positive negative will. Attract each other. The electrostatic force of attraction between oppositely charged ions we call it as ionic bond, or also called as electrostatic bond. Can you guess here? When calcium have 2 valence electrons and oxygen needs 2 electrons, so it will transfer these 2 electrons to oxygen. What will be charge over calcium here, Ruhi? If it loses 2 electrons, So positive. how many positive charge? 1 plus positive Sir, or 2 positive? sir, 2 positive. And oxygen, if it gains 2 electrons, that will have 2 negative. 2 negative charge, and the attractive force between these two will be, what do you call it, ionic bond or covalent bond? Sir, ionic. It is ionic bond. So this was first given as octet rule. सर जी, सर एक चीज पूछूं. मैं कभी मना करता हूं मैं? सॉरी सर. सर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा. सर आप ही आंसर करोगे. अगर आपके पास यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस d है, हाउ डू यू कैलकुलेट कूलम्स फोर्स? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना कूलम्स लॉ. यस सर. तो यहाँ पर जितना चार्जेस ज्यादा होंगे उतना अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी सर? ज्यादा. और जितना आयन का साइज छोटा होगा, मतलब आयन एक दूसरे के क्लोज होंगे, उतना ज्यादा ही होगा. जी सर, समझ आया? सर तो मतलब जो मैंने पूछा था वही सही बात है. उसी चीज को तो आंसर किया सर मैंने. if ion have more charge, there will be more force of attraction. उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा.
अच्छा, और जितना okay. छोटे आयंस होंगे उतना स्ट्रांग होगा। ये आगे आप लैटिस एंथैल्पी पढ़ेंगे, सिखाऊंगा अभी आगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर। तो देखिए यहाँ पर यू कैन राइट हेयर Lewis octet rule. Atoms combine with each other to attain stable noble gas configuration. To attain stable noble gas configuration. And it can be by transfer of electron, which already I have told you. Transfer of electron से क्या बनेगा? Ionic bond. And another is by mutual sharing of electron. Which is called as covalent bond. और यहाँ पर आप कहेंगे सर हाइड्रोजन और क्लोरीन का आप एग्जांपल लीजिए। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म? आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों में से किसी ने पहले भी पूछा था सर मुझसे कि सर यहाँ आयनिक क्यों नहीं होगा। डू यू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन? यस सर। क्यों नहीं होगा सर? व्हाई दिस इज ए कोवेलेंट बॉन्ड? Is hydrogen a metal or a non-metal? सर नॉन मेटल। It's a non-metal. Chlorine is also a non-metal. हमेशा एक चीज याद रखिए सर, whenever metal and non-metal they combine, what type of bond will be there? Vijaya? Sir, ionic. They will form ionic bond. Whenever non-metal they combine, then it is Covalent. covalent bond. And whenever metal they combine with each other, we call it as metallic bond. This also we will discuss later. बट आपके पास जैसे एलॉयज हैं, जिंक कॉपर का एलॉय है या कॉपर टिन का एलॉय है या एनी अदर एलॉय यू हैव, देयर मेटालिक बॉन्ड इज देयर। इवन अगर मैं आयरन क्रिस्टल की बात करता हूँ, आयरन की ही बात करता हूँ, तो आयरन के बीच में बॉन्डिंग कैसा होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। थोड़ा सा मैंने आइडिया इसका पीछे दिया था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इफ यू रिमेम्बर, ऐसा डिस्कस किया था मैंने थोड़ा सा पीछे। अब यहाँ पर विदाउट थिंकिंग, सर ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, so what will they combine? How will they combine? They will share 1 electron each, or sharing of 1 electron pair means single bond. यहाँ पर सर covalent bond is mutual sharing of electron, and number of electron pairs shared is equal to number of covalent bonds. Simple as that. अब मान लीजिए क्लोरीन मॉलिक्यूल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज,
You can show as dots also, या आप क्रॉस शो कर दो just to differentiate between the two atom, electrons of two atom. अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, so what kind of bond will be there? सिंगल Single covalent bond. और अगर मान लीजिए मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 दिस इज अनदर ऑक्सीजन. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे. इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, सेकंड ऑक्सीजन के पास भी 8 हुए. So what type of bond they have? डबल Double bond. And can you write for nitrogen? How many valence electron nitrogen atom have? और 5 ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. So they share 3 electrons each, and bond will be triple covalent bond. हरप्रीत समझ आया यहाँ पर? सात्विक? यस सर, समझ आ गया. One more type we have here, coordinate covalent bond. In normal covalent bond, there is mutual sharing of electrons between the atom. दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं. बट in case of coordinate covalent bond, shared electron is contributed by one of the bonded atom. आप समझ लीजिए ओजोन मॉलिक्यूल है. अभी मैंने जस्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बताया था कि आपके पास 2 पेयर शेयर किए इन्होंने आपस में. ठीक है, तो आपके पास ये ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया सर, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब अगर तीसरा ऑक्सीजन आप देखेंगे, इसके पास भी सर 6 इलेक्ट्रॉन है. अब इस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर तीसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है. अपना पेयर पूरा का पूरा शेयर कर रहा है, क्योंकि उस थर्ड ऑक्सीजन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास कंप्लीट नहीं है. अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता सर, तो बीच वाले एटम के पास 4 4 8 और तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते. तो ये क्या करता है सर, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. एंड व्हाट आई गेट इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सर जी, सर पर ऊपर वाला ऑक्सीजन तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो क्यों देगा अपने इलेक्ट्रॉन को? बेटा वो O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया ना आपने. ये O2 ठीक है, आपके पास स्टेबल है, ठीक है आपकी बात, बट O3 कैसे बना? हाउ विल O3 बी फॉर्म? तीसरे ऑक्सीजन से. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम कंट्रीब्यूट करेगा. इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड. आल्सो इट इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड. सर जी
सर इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड भी तो दोनों हो रहा है। आयनिक कैसे हो रहा है सर? अच्छा नहीं सर, सॉरी सॉरी। आयनिक तो नहीं है, इट्स ए कोवलेंट बॉन्ड ओनली। बट कोवलेंट से ये कैसे डिफरेंट है? कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर एक ही एटम कंट्रीब्यूट करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है सर? एक और एग्जांपल देता हूं सर। NH3 plus H plus gives NH4 plus. Just think कि सर अमोनिया के पास स्ट्रक्चर कैसा होगा? 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास सर। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस के लिए? एक। 3 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करते हैं सर। अमोनिया स्टेबल हो गया सर। ऑक्टेट कंप्लीट है। H प्लस का मतलब क्या हुआ? इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? No. हाइड्रोजन इज 1 electron, or in terms of orbital it is 1s1. I guess Ruhi, Siddhant and Vyomini have joined from today. Yes, sir. Are you getting it? Yes, sir. Actually, configuration, atomic structure, if you have not done, then I can request Deepak sir to give you the access to the videos. आप या तो वीडियो ले लीजिए या फिर कुछ आपका you want we can keep some extra classes for you, ताकि बैकअप आपका जो है वो विद इन ए मंथ आपका कवर करते हैं। Okay, sir. बिकॉज आपने, मुझे नहीं लगता ऑर्बिटल कभी पहले पढ़ा होगा 10th में या 9th में। Yes, sir. हैव यू स्टडीड? No, sir. So I will speak to Deepak sir regarding this and will help you in that also, because without configuration अभी तो सिंपल है बच्चे। जैसे जैसे हम आगे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में जाएंगे, VBT पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, देन दैट विल बी यूज्ड देयर। तो मैं बात करके देखता हूँ सर से कैसे करते हैं, कैसे इसको हमें मैनेज करना है। I would like to have some extra classes. At Okay, least sir. पिछला आपका बैकलॉग क्लियर कर देंगे। Just for 3 of you, बाकी स्टूडेंट्स तो कर चुके हैं ये सब। अब H प्लस के पास तो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना यहाँ पर। भाई हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको सोचें कि सर H प्लस बना, it will lose 1 electron. It will have to lose 1 electron, right? Yes, sir. Yes, sir. अब आपके पास H प्लस कैसे जुड़ेगा इसके साथ? अब ये जो आपके पास 3 बॉन्ड बनने, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, ये क्या करता है सर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर नहीं कर रहा, इट्स नॉट आयनिक बॉन्ड, rather sharing of electrons only, but shared electron is contributed by one of the atoms only. एक ही एटम ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। यू कैन थिंक ऑफ कि आप और आपका फ्रेंड दोनों पार्टी के लिए गए और दोनों म्यूचुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलो 50 रुपए आपने दिए, 50 आपके फ्रेंड ने दिए, मिलके आपने कुछ भी ट्रीट की छोटी सी,
और एक सिचुएशन ऐसी है, आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है और दूसरा फ्रेंड कहता है कि मेरे पास तो है यार, चल मैं खिलाता हूँ तुझे। तो फर्स्ट सिचुएशन वेयर दे म्यूचुअली कंट्रीब्यूट, व्हाट डू यू कॉल इट, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोवैलेंट। दैट्स ए कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड सेकंड सिचुएशन जहां एक फ्रेंड के पास पैसे हैं, दूसरे के पास नहीं है, मिलके फिर भी ट्रीट ले रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड हेयर सिंपल वे कि सर यहाँ पर डोनर एक्सेप्टर क्यों बोला मैंने? व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड? क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रॉन रिच है और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एक के पास पेयर है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है शेयर करने को। तो जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, व्हाट विल यू कॉल इट? एक्सेप्टर। और द अदर एटम विल बी कॉल्ड एज डोनर। डोनर। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं सर 1 2 3, विच इज डोनर विच इज एक्सेप्टर हियर? डोनर पहला वाला है और एक्सेप्टर तीसरा वाला है। Very good. 1 is donor, 3 is acceptor. And in second case, सर वो कुछ नहीं है। इसमें अमोनियम में, अच्छा नहीं सर, मैं कुछ और कह रहा था। मैं समझा आपका 1 और 2 की बात कर रहे थे आप। यस सर। अमोनियम में विच इज डोनर एटम? बोलो। इन अमोनियम आयन NH4 प्लस में डोनर नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है? व्योमिनी, सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज डोनर एंड H प्लस इज एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। वेरी गुड। Now, if I ask you how to write Lewis structure for carbon dioxide or for sulfur dioxide, try, then I will discuss how to draw the Lewis dot structure for a molecule or a compound. You try these two. This is simple. And methane also you write CH4 also. सर Yes, sir, written. CO2 का क्या है? CO2, how many valence electron with carbon here? 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? सर 2। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। विल इट बी कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड? कोवैलेंट ही होगा। कोवेलेंट Covalent. होगा, बिकॉज नॉन मेटल आपस में क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट। तो यहाँ पर कैन यू राइट इट एज कितने बॉन्ड होंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में? सर डबल। डबल बॉन्ड होंगे। सेम वे यहाँ पर सर। अब SO2 के केस में सल्फर हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6। अब ऑक्सीजन अगर मुझे 2 बॉन्ड करने हैं बेटा, तो एक तो आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका,
डबल बॉन्ड बना. अब दूसरा ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा? कैन यू थिंक? सर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स. वेरी गुड. यहाँ पर सर ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. गुड आंसर सर. यहाँ पर दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू हैव फॉर SO2. क्योंकि अगर यहाँ पर सर मैं एक पेयर शेयर करता, दोनों अगर एक एक पेयर शेयर करते, तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 2 डबल बॉन्ड मीन्स यहाँ पर आपके पास 4 4 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते. तो ऑक्टेट रूल वायलेट होता. Although this is not a requirement here, but this is the most stable arrangement here. And in case of CH4, can you tell me कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास रूही? How many electrons with carbon valence electron? सिद्धांत? Sir, 8. 8 or 4. Carbon atomic number 4, is 6. Carbon has atomic number 6. So how do you write its configuration? Two, 4. Sir, 2 and 4. So valence electrons will be 4 only, na? So I am writing here 4 dots. And how will it bond with hydrogen? हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम कॉन्फ़िगरेशन के लिए. तो आपका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन होने से नोबल गैस ये भी एक्वायर कर लिया. So what is the structure here? This is methane. Have you understood? Aryan? Yes, sir. Good. Yes, sir. Now it's how to write the Lewis structure if you don't know the formula or if you don't have any idea. Let's say I give you carbonate, I give you nitrate or nitrite ion, or I give you CS2, or I give you PS3, or let's say nitrate ion. Any molecule or ion if given. How to write the Lewis dot structure in that case? CCl4. So there are certain steps, and if you write step by step, you will be able to arrive at the Lewis dot structure for a molecule or a ion. So these steps are, I am explaining step by step. Whichever species you name, I will write its Lewis structure. Tell me which one you want. बोलो किसका ड्रॉ करें सर? CO3 -2. जी ठीक है. Steps for writing Lewis dot structure. First is count the total number of valence electron on all the atom and add number of electrons equal to negative charge and subtract
number of electrons equal to positive charge. What does it mean basically? You said, sir, carbonate. How many valence electrons are there with carbon? कितने valence electron है carbon के पास? 4. अभी बताया था लास्ट पेज पे, देखिए आपको अभी कराया मैंने. Carbon has how many valence electrons? 4. And how many oxygen have how many valence electron? Oxygen is 8. So you will write as 2, 6. Valence electrons will be 6. 6 3 ja 18 plus 2. नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए सर? $24 इलेक्ट्रॉन्स. राइट द गॉट इट. कैसे आया ये? सपोज आपको CCl4 में बताना है. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने होते हैं सर? 7. 7 into 4 कितना हुआ सर? 28. 32 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. नाइट्रेट है सपोज. नाइट्रोजन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7. नाइट्रोजन Sorry, के पास 5. 5 होते हैं सर. 5. Sorry. ऑक्सीजन 6 3 जा 18 प्लस कितना करेंगे? So 1. और अगर मान लो आपके पास NH4 प्लस है, नाइट्रोजन 5, हाइड्रोजन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 into 4 4 हो गया सर. और पॉजिटिव चार्ज का मतलब -1. कितना हुआ सर ये? 8 electrons here. Next step is write the skeleton so that least electronegative atom is the central atom. कार्बोनेट में सेंट्रल एटम किसको मानोगे सर? Central atom मतलब कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन को मानते हैं सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऑक्सीजन आपको याद है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है. तो दिस इज CO3. आप पहले सर सिंगल बॉन्ड बना दीजिए. ठीक है, कम से कम एक बॉन्ड तो होगा ही होगा सर. अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पर? 24 थे. हमने काउंट किया था अभी 24 इलेक्ट्रॉन्स पर थे. अब आपने क्या करना है सर? कितने इलेक्ट्रॉन? 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए सर? 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. 3 बॉन्ड बने तो यूज कितने हुए इलेक्ट्रॉन? अच्छे. कितने बच गए सर मेरे पास? 18 बचे ना. 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए बॉन्डिंग में, बचे आपके पास 18. अब आप काउंट करके देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन को ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए. लेट्स से 1, दिस इज 2, दिस इज 3. फर्स्ट ऑक्सीजन को कितने चाहिए?
सर एक बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है ये, इसका मतलब और इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर तीनों में 6 6 डिवाइड होंगे। यहाँ भी 6 चाहिए, यहाँ भी 6 चाहिए, ठीक हम्म, है, लेकिन कार्बन को भी तो 2 चाहिए बेटा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ भी 2 चाहिए। मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट सबका कंप्लीट करने के लिए 20 चाहिए, जबकि मेरे पास कितने हैं? 18। तो मुझे क्या करना है सर? बस यही गेम है सर, मुझे इन इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करना है कि ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाए। मैं क्या Can करता you हूँ? sir please repeat? जी सर, बोलो। Sir, can you please repeat, sir? I got disconnected. फर्स्ट यू हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज, जैसा बताया था, -2 था, ये तो आपने सुना ही होगा यहाँ तक। Yes, sir. जी, अब आपने जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको सेंट्रल एटम मानिए। जैसे कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है पीरियोडिक टेबल में, तो कार्बन को सेंटर माना मैंने। नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। CCl4 है तो कार्बन होगा। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है काफी ज्यादा। और NH4 प्लस इज डिफरेंट, ये मैं आपको बताऊंगा आगे से। अब यहाँ पर आपने सर सिंगल बॉन्ड बनाना है पहले। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए, 2 यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। अब मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन को चाहिए, 6 इसको चाहिए, 6 इसको चाहिए और 2 कार्बन को चाहिए। तो आपने क्या करना है सर? 18 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 20 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सर? मल्टीपल बॉन्ड बना देता हूँ। कोई एक बॉन्ड मैंने बनाया, अब आपके पास बच गए 16, और काउंट करके देखिए आपको 16 ही चाहिए होंगे। अब यहाँ पर 4 चाहिए, अब क्योंकि डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पर। यहाँ 6 चाहिए, यहाँ भी 6 चाहिए। कितने हो गए सर? सर समझ नहीं आया नहीं आया? अभी दोबारा भी सर, आएगा सर। बैलेंस के बाद। यहाँ आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना यस सर। भाई। लुईस स्ट्रक्चर का मतलब ऑक्टेट सभी एटम्स का कंप्लीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऑक्टेट के लिए आपको यहाँ पर 6 चाहिए थे, यहाँ भी 6 चाहिए थे, यहाँ भी 6 चाहिए थे, 2 कार्बन के लिए चाहिए थे, 20 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, जबकि मेरे पास बचे हैं 18। तो मैं क्या करता हूँ? मल्टीपल बॉन्ड बनाता हूँ एक। अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। यहाँ देखो, ऑक्सीजन एटम है, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। अगर दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्डिंग के लिए, ऑक्टेट के लिए? तो 2 चाहिए दोनों। 2 चाहिए ना दोनों को। तो ये क्या Yes. करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। सर पर हमने सिंगल बॉन्ड बनाए तो वो तो ऑलरेडी उनका एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ था सर। वापस से यहाँ देखो, हमने ये बनाया था सर, CO3 बनाया था ना। यस सर। 24 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, 3 बॉन्ड बनाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 6 होगा। बचे कितने? हाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स है। आपने अलग अलग एटम के लिए सोचिए, यहाँ पर 6 चाहिए मुझे, यहाँ भी 6 चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिए ना उसने। शेयरिंग से आगे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, कार्बन के पास भी है। कार्बन इनफेक्ट 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। कार्बन को कितने चाहिए होंगे? सर, तो ऑक्सीजन को 2 एटम मिल गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए सर, तो उसका तो वो कंप्लीट हो गया ना 8। बेटा यहाँ पर
आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, एज सिंपल एज दैट। अगर आपने यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या बताओ? नहीं सर, लेकिन कार्बन का ऑक्सीजन तो अभी इनकम्प्लीट रहेगा ना। यस सर। तो आपने क्या करना है, मैं वही चीज आपको समझा रहा था। मेरे पास बचे हैं 18, जबकि मुझे चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन, तो पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक मल्टीपल बॉन्ड डाल देता हूँ। अब जब आपने ये बनाया, अब देखो आपको यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, यहाँ 6 चाहिए, और बचे कितने, एक बॉन्ड और बनाया था मैंने, तो 16 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। यहाँ भी आपको कितने चाहिए सर जी? सर पर जैसे हमने अगर क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड बना ली था तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हमने 6 और दे दिए तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन वापस 6 नहीं हो जाएंगे? आपने 6 इलेक्ट्रॉन तीनों ऑक्सीजन को दे दिए, 18 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सपोज, हम्म। कार्बन तो फिर इनकम्प्लीट रह गया ना। हाँ सर, लेकिन ऑक्सीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ ना। ऑक्सीजन तो हो गया कंप्लीट। आपने अगर ये बनाया, आप कह रहे हैं सर ये मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, चलो 6 दे दिए, 6 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, अब ऑक्टेट ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या कार्बन का कंप्लीट हो पाया? कार्बन इज स्टिल इनकम्प्लीट, तो ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। सर मैं कह मैंने रहा क्या हूँ करना है, मैंने इसको एक डबल बॉन्ड बना देना है। डबल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए ना यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो 16 बचे। अब आप काउंट कर लो, 6 + 6 12 + 4 16, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने यहाँ पर सर 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, यहाँ पर कितने बनाने हैं, 6 बनाने। ये स्ट्रक्चर होगा इसका कार्बोनेट। अब आप कहेंगे सर ये -2 कैसे आपने बनाया? -2 सर, वैसे आप देखिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से ले लिया, तो अब इस पे चार्ज क्या होगा, -1, यहाँ भी -1, और इस पे 0 चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं। इसको मैं आपको एक और आगे सिखाऊंगा, फॉर्मल चार्ज कैसे बताते हैं, उससे भी हम निकाल सकते हैं, ये आगे आएगा। अभी कुछ कुछ समझ आया होगा, बट एक और एग्जांपल लो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि सर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं आप, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर इसके पास? कार्बन के पास कितने हैं वैलेंस? सर विजय ऑक्सीजन के पास? Sir 6. टोटल कितना हुआ इलेक्ट्रॉन? Sir 10. अब आपने सर दो एटम है तो सिंपल सिंगल बॉन्ड बनाया, Yes sir. 10 इलेक्ट्रॉन थे, कितने बचे? सिंगल बॉन्ड में 2 यूज हो गए। Yes sir. अब आपने क्या करना है, ऑक्टेट के लिए कार्बन को कितने चाहिए, Sir 4. और ऑक्सीजन को 4 या 6? अभी बॉन्ड एक ही बना ना इनके बीच में, और Yes कितने sir. इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 6 चाहिए, और इधर ऑक्सीजन को भी 6 चाहिए, 12 Yes sir. इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि बचे हुए कितने हैं मेरे पास, 8। अब आप क्या करिए, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बना दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड और बनाए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 बचे ना बेटा। Yes sir. और मुझे कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए, दोनों के लिए 4 चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए,
2 इलेक्ट्रॉन दो। चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा CO मॉलिक्यूल। सर ये चीज समझ नहीं आ रही। जी, सर ये चीज समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आई? नहीं सर। चलो आप मुझे नाइट्रेट में समझाओ सर, कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नाइट्रोजन, सर 5। ऑक्सीजन, सर 18 मतलब 2 सर और एक प्लस 1 कितना हो गया? सर 24 सेंट्रल एटम किसको रखें? सर नाइट्रोजन। सिंगल बॉन्ड बनाएंगे आप? सर सिंगल बॉन्ड बना के होगा क्या? भाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपको सर, 24 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यस एज सर। सिंपल एज दैट। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पहले तो सिंगल बॉन्ड ही समझोगे ना सब में। सर तो हमने सिंगल बॉन्ड बनाई सर, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा नाइट्रोजन का? किसका कंप्लीट हुआ बताओ? सर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन सर, मतलब तीनों से सर तो हो नहीं जाएगा? आपने सिंगल बॉन्ड बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए इनमें से? क्या सर? आपने, आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन है सर, यस आपने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए? सर 6। 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। चलो Yes. बचे कितने मेरे पास? सर 18। अब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करो सर, ऑक्टेट सबका सेटिस्फाई करना है मुझे, कैसे करोगे बताओ? लगाओ दिमाग आप खुद ही। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर मैं तीनों ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? सर तो सिंगल बॉन्ड हमने मतलब बना के सर कुछ होगा नहीं क्या इलेक्ट्रॉन का? बेटा जब इलेक्ट्रॉन आपने बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, समझा मैं आपकी बात, अभी आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है ऑक्सीजन का, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को? तो 2 चाहिए। 2 चाहिए, 6 चाहिए? तो 2 चाहिए ना, मतलब 2 सर 2 चाहिए ना ऑक्सीजन को तो। इस स्ट्रक्चर में बताओ मुझे, स्ट्रक्चर में 6। इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 6। थर्ड ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 6। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3। 2 चाहिए। वैसे भूल जाओ यार, आप पता है मैं क्या कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग में? सर नाइट्रोजन के पास 5 से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो चीज नहीं यस सर। सोचो आप। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें देखो कितने चाहिए मुझे। तो नाइट्रोजन में आपने 2 कैसे लिख दिया? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 तो शेयर करके हो गए। हाँ और हाँ। कितने चाहिए इसको? 2 चाहिए ना। सर 2 कैसे चाहिए, मतलब ये समझ में नहीं आया। यार जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, शेयरिंग के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन से शेयर किया, अभी कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको? सर अगर एक इलेक्ट्रॉन तीनों से उनसे ले लिया तब तो हो नहीं जाएगा, मतलब इसका फुल। आपके पास 3 बॉन्ड बना दिए इसने, ऐसे सोचो। चलो ये ऑक्सीजन के साथ इसने शेयर किया ना, यस सर। अब क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का? नहीं सर। अभी कितने और इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए इसके लिए? सर 2। 2 चाहिए ना। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए ऑक्टेट के लिए? 6, 12, 18 और 2, 20 चाहिए। पड़े हुए कितने हैं मेरे पास? 18। एक डबल बॉन्ड बना दो। इसका हो गया सर, घर कंप्लीट हो गया। इसको अब कितने हाँ चाहिए? सर अब समझ में आया। अब इसको कितने चाहिए? 4 चाहिए ना। 4 क्यों चाहिए?
डबल बॉन्ड आ गया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसके पास। अब मैंने जब एक डबल बॉन्ड बनाया, मतलब एक पेयर और यूज किया, तो 16 बचे। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कितने करने हैं मुझे? 4 6 10 6 16। बना दो, स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। सर यहाँ एक डबल लास्ट बॉन्ड, बार बता दो वो ऑक्सीजन के 4 कैसे आ गए? जब आपने एक बॉन्ड और बनाया, मतलब 18 में से एक पेयर और यूज कर लिया, यस सर। 16 इलेक्ट्रॉन बचे ना आपके पास। यस अब सर। यस यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले के पास? जब डबल बॉन्ड बनाया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना आपस में, यस सर। तो और कितने चाहिए ऑक्टेट के लिए? सर 4। इसको कितने चाहिए? एक ही तो पेयर शेयर किया है इसने, यस सर। 6 चाहिए। यस सर। इसको कितने चाहिए? 6। 6। अब आपके पास काउंट करो, 6 6 12 और 4 16, बचे हुए कितने हैं? 16। यस सर। बन गया स्ट्रक्चर। हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 4 6, 2 4, यहाँ पर 2 4, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूं, आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो सर। 4 तो बॉन्ड बने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और लोन पेयर काउंट कर लो जो अनशेयर्ड पेयर है, 4 इधर है, 6 इधर है, 6 इधर है। टोटल इलेक्ट्रॉन 24 हो गए। यस सर। अपने पास कितने थे? 24। बस स्ट्रक्चर बन गया। सर आ गया सर। थैंक यू सर। अभी स्टिल डाउट इज देयर, आई नो। मे बी कुशाग्र को अभी समझ आया, उसने कहा से समझ आ गया। बट एक और एग्जांपल आपको देते हैं सर। CS2 मॉलिक्यूल, आई विल आस्क यू सर, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्यन? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, So 4. और सल्फर के पास, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। बता सकते हो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? So 6। और 2 सल्फर है तो कितने हो जाएंगे? 2 into 6 12 हो जाएगा ना। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन फॉर सल्फर। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब आपके पास से 16 इलेक्ट्रॉन है। आपने कार्बन को सेंटर में रखा, सल्फर सल्फर। नाउ टेल मी कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सल्फर को ऑक्टेट के लिए? यहाँ पर स्ट्रक्चर देख के बताना है, वैसे नहीं बताना मुझे कि सर 286 है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 तो इसने शेयर कर लिए, वो नहीं। आप यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें सोच के बताइए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो। एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। यस सर। अभी 6 चाहिए। कार्बन को कितने चाहिए सात्विक? 2 बॉन्ड बना रहा है, 2। 2 या 4? हाँ। विजया, इधर सल्फर को कितने चाहिए? Sir, 6. 6। 6 4 10 और 6 16। लेकिन जब मैंने 2 बॉन्ड बना दिए तो बचे कितने? 14. 12। 2 बॉन्ड का मतलब तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए ना बेटा, 2 पेयर। Yes, sir. ठीक है। अब 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं आपके पास? 16 चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड आएगा सर। एक बॉन्ड इधर बना दिया मैंने, एक इधर बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन और घटा दो, कितने हो गए? 8। और चाहिए कितने अब आपको? सल्फर को 4, इधर सल्फर को 4, और बचे कितने? 8। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इलेक्ट्रॉन। सर सी में भी तो 2 बचेंगे। सी के ऊपर कहाँ से बचे? अच्छा सी ने सर। तो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। हाँ सर, वो ऐसे मैंने एक साइड का देखा नहीं था। अभी समझ आया कुछ कुछ? हाँ सर और आ रहा है ना? आ रहा है सर। जी।
एक और दें, अब आप खुद ट्राई करेंगे? यस सर दे दो। जी सर, आप NO2 माइनस का बनाइए। इलेक्ट्रॉन काउंट करो पहले। हु विल आंसर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिद्धांत कैन यू आंसर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 5, ऑक्सीजन 12, 6 into 2 12। नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे आप? +1, +1 कितना हो गया? 18, सेंटर में किसको रखेंगे सर आप? नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड बनाया तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। यस सर, अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस ऑक्सीजन को? 6, नाइट्रोजन को 4 और ऑक्सीजन को अगेन 6। 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। डिफरेंस आपका कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है ना? यस सर, एक डबल बॉन्ड बना दो। अब देखो, अब आपके पास इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इधर 6 चाहिए। 6 2 8 4 12 और एक डबल बॉन्ड बनाया तो बचे भी कितने मेरे पास? 12 बच गए। इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। Now I hope you have understood this. यस सर। यस सर, सर आप स्लाइड शेयर कर दोगे आज के? बिल्कुल कर देंगे सर। थैंक यू सर। You are always welcome, sir. जस्ट बी सिंपल सर, आप H2O का ड्रॉ करो। H2O तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलो H2S का ड्रॉ करते हैं। सल्फर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, और हाइड्रोजन के पास 1, 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। 8, तो आपने क्या करना है सर? सल्फर H हो गया सर आपके पास। ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए आपके पास? 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका अचीव हो गया। तो सिंगल बॉन्ड होगा दोनों साइड। हाँ जी, सिंगल बॉन्ड है दोनों से। सेम वे वाटर भी आपका यही होता है, HOH और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते ओके हैं। ओके, नाउ दिस टॉपिक इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट सर। Cl2 का बनाओ, HCl का बनाओ, इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लेना। बट जो डिफिकल्ट है आयंस के बनाना, वो मैंने आपको बता ही दिया। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट? It's not always that octet rule is followed. There are certain exceptions here. One exception is clear here कि सर जहां भी हाइड्रोजन आएगा, molecules containing hydrogen have complete duplet. Duplet means
कोई भी मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के पास हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट नहीं होता। अंडरस्टूड? सेकेंड एक्सेप्शन इज molecules containing incomplete octet. Incomplete octet means जहां पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। You have BeH2, BeCl2, BCl3, etc. यहाँ पर बेरिलियम आपका एटॉमिक नंबर होता है सर कितना, 4 होता है ना। तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ जब इसने बॉन्ड बनाया तो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, शेयरिंग के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास? बोलो। क्या 4 सर? इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हुआ। BCl3, बोरोन हैव 3 और क्लोरीन के साथ शेयर किया इसने। नो डाउट क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? बोलो। बोरॉन पे तो 3। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना शेयरिंग के बाद। अगेन इनकम्प्लीट Yes, sir, octet yes. is there. There are certain molecules which have expanded octet. सर पर बोरॉन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है ना 3 ही तो दिखाए मैंने। सर, तो शेयर वो के हो नहीं बाद रहा 6 है। इलेक्ट्रॉन हुए ना सर। अच्छा, आफ्टर हाँ सर, हाँ शेयरिंग सर, इट इज यस सर, हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, 8 तब भी नहीं है इसके पास। यस सर, तो Molecules having expanded octet. Expanded octet का मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। PCl5 is an exception, SF6 is an exception, IF7 is an exception. अब 7 बॉन्ड बना रहा है आयोडीन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सर शेयरिंग के बाद? 14 हो जाएंगे ना। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली ऑक्टेट से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसमें शेयरिंग के बाद। एंड लास्टली मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NO2, NO, ClO2 etc. आप सर NO का ही एग्जांपल ले लो। नाइट्रोजन के पास सर 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन से शेयर कर रहा है, ये 2 पेयर शेयर किए इसने, डबल बॉन्ड बना दिया। अब क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका? बताइए। No, sir. ऑक्टेट इज स्टिल इनकम्प्लीट। आप कैसे भी ड्रॉ कर लो सर, इसका ऑक्टेट आप कंप्लीट शो ही नहीं कर सकते। लुईस स्ट्रक्चर आपका इसका ड्रॉ ही नहीं कर सकते। जो भी एक्सेप्शन है ये, जिसमें आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या इनका आप लुईस स्ट्रक्चर प्रॉपर बनेगा ही नहीं, ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस। जनरली आपसे 1 मार्कर पूछा जाता है, आपसे एक्सेप्शन दिया है इसमें, which of the following have expanded octet या incomplete octet या which of the following is odd electron molecule। तो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा सर। यू कैन सिंपली काउंट। अगर आपसे कहा जाए सर BH3 है, इज इट हैव कंप्लीट ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट? कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद होंगे? Incomplete. इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा ना ये। कंप्लीट क्यों होगा? 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के 3 और बॉन्ड बनाए तो 6 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए बेटा।
अच्छा हाँ सर, मैं फिर से उससे अगर NH3 है, NH3 कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? अब नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर, हाइड्रोजन से शेयर किया इसने एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट इसका अपना कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया सर? हुआ ना होगा। ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। बट BH3 है, बोरोन ग्रुप है, बेरिलियम ग्रुप है, सर इनकम्प्लीट मतलब जिसका एक ऑक्टेट मतलब एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं तो होगा। सेंट्रल एटम है ना, उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा सर, और तीसरा BF3 है, वाला BCl3 है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। सर एक्सपैंडेड ऑक्टेट का क्या है सर? एक्सपेंडेड मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जिसमें। ओ ओके, सर पहला वाला में डुप्लेट मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, आपने वाटर में ड्रॉ किया, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, 2 ही तो होंगे। नियरेस्ट नोबल गैस तो हाइड्रोजन का हीलियम ही है ना। यस सर। तो इस तरह से हमें आंसर करना है सर। कई बार आपसे ये पूछा जाए सर इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताओ, तो बॉन्ड पेयर का मतलब जो बॉन्डिंग में यूज हो गए, और लोन पेयर मतलब जो कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सर बताओ, बॉन्ड पेयर? तो 2 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर कितना है? 4 पेयर सर, पेयर की काउंट करो। सर 2 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। और अमोनिया में सर 3 पेयर बॉन्ड पेयर। 1 लोन पेयर। यस। ठीक है सर, गुड नाइट, नेक्स्ट फिर मिलते हैं परसों। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू Okay. सर। Thank you, sir.